हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे नया चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, both of these are isomeric compound and which contain the functional group C double bond O, that is carbonyl. So these compound are also known as the carbonyl compound. In case of a aldehyde, the carbonyl carbon is attached to one hydrogen and one alkyl group, but in case of a ketone, the carbonyl carbon is attached to the two alkyl group or two aryl group. इसी केस में जैसे यहाँ पे हमारे पास ये alkyl group भी हो सकता है और ये aryl group भी हो सकता है. If these both these are the same, if R and R dash are the same, then this ketone is known as the simple ketone. इसको हम बोलेंगे simple ketone. But अगर ये हमारे पास R and R dash दोनों different हैं, if these are the different, then these are known as the mixed ketone. रिपीट करती हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द आइसोमेरिक कंपाउंड विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप कार्बोनोइल एंड सो नोन एज द कार्बोनोइल कंपाउंड हम इनको बोलेंगे. इन केस ऑफ ए एल्डिहाइड, दिस कार्बोनोइल कार्बन इज अटैच्ड टू द वन एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप and with one hydrogen, but in case of a ketone, this carbonyl carbon is attached to the two alkyl group or two aryl group. If these are the same, then these are known as a simple ketone, and if these are the different, then these are known as a mixed ketone. तो हम इनको बोलेंगे mixed ketone. In case of a aldehyde, the compounds contain the aldehydic functional group, but in case of a ketone, the compound contain the ketonic group. Now, structure. कार्बन और जो हमारे पास ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, एंड कार्बोनिल कार्बन अटैच टू द फर्दर इन केस ऑफ ए एल्डिहाइड आर एंड हमारे पास अटैच होता है हाइड्रोजन से. सो दिस कार्बोनिल कार्बन इन केस ऑफ ए एल्डिहाइड एंड इन केस ऑफ ए कीटोन फर्दर अटैच टू द टू ग्रुप्स बाय द सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, यानी जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है. According to MOT, this carbonyl carbon use the sp2 hybrid orbitals for formation of the 3 sigma bond with the other atoms. For formation of the 3 sigma bond with the another atom, and this pi bond which remain use the carbonyl carbon अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो रहता है किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ऑक्सीजन के साथ सेम ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा. साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. जो हमारे पास एटम है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या इन केस ऑफ ए कीटोन्स दिस इज द एल्काइल या एराइल ग्रुप, बोथ आर all of these are in the same plane. All of these are in the same plane. But in case of a carbonyl compound, carbon and oxygen has the different electronegative. इनकी electronegativity क्या होती है, different होती है. Oxygen is the more electronegative as compared to the carbon, so withdraw this pi electron density toward itself, making the bond is polar in nature. Oxygen contain the negative charge and carbon के ऊपर आ जाएगा positive charge. So this bond is the polar in nature. This bond is the polar in nature. I again repeat it. In case of a aldehyde and ketone, the carbonyl carbon और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है. जो कार्बन है फर्दर इन केस ऑफ ए एल्डिहाइड या इन केस ऑफ ए कीटोन मेक द सिग्मा बॉन्ड विद अदर एटम्स. यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा इन केस ऑफ ए एल्डिहाइड और वन एल्काइल या अराइल ग्रुप. बट इन केस ऑफ ए कीटोन यहाँ पे हमारे पास अटैच होगा एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे भी एल्काइल या अराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है.
So this carbonyl carbon make the 3 sigma bond and 1 pi bond. 3 sigma bond with the एक हमारे पास 2 यहाँ पे और एक ऑक्सीजन के साथ होता है. So according to MOT, this carbonyl carbon use the sp2 hybrid orbitals for formation of sigma bond with the other atoms. For formation of sigma bond with the other atom and pi bond is formed. कार्बन यूज द रिमेनिंग जो हमारे पास रह जाता है उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स वो ओवरलैप करेगा ऑक्सीजन के सिंगुलर ऑर्बिटल के साथ, साइड में ओवरलैपिंग होगी, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड. सो इन केस ऑफ ए कार्बोनल कंपाउंड्स, तो कार्बोनल कार्बन एंड ऑक्सीजन हैज द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कार्बन और ऑक्सीजन की डिफरेंट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो विड्रॉ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड द इटसेल्फ, मेकिंग द ऑक्सीजन ओ नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो दिस बॉन्ड इज द पोलर इन नेचर. दिस बॉन्ड इज द पोलर इन नेचर. नेक्स्ट, मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है. सेम डबल बॉन्ड होता है हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इनके बीच में हम देखेंगे व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस. डिसिमिलैरिटी, तो फर्स्ट हम करते हैं सिमिलैरिटीज. बोथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है हमारे पास, एक सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड है दोनों के केस में. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड. सेकेंड, जो हमारे पास कार्बन यहाँ पे है और कार्बन यहाँ पे यूज द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स for formation of sigma bond with the other atoms. So use the sp2 hybrid orbitals use करता है कार्बोनिल कार्बन या फिर हमारे पास इथाइलिन के केस में. थर्ड पॉइंट इज दैट ये भी हमारे पास हमने क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हम ये होता है प्लेनर इन नेचर. दिस इज आल्सो प्लेनर इन नेचर. तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं नेचर के अंदर. फोर्थ इज दैट both shows the addition reaction. Both show the addition reaction शो करती है. तो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द कार्बन कार्बन के बीच में इन केस ऑफ ए जो एल्केन्स होते हैं डबल बॉन्ड उनके केस में, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है. नाउ हम बोथ में दोनों में क्या है, एक एक सिग्मा बॉन्ड है, एक एक पाई बॉन्ड है. सेकेंड, दोनों ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद द अदर एटम. थर्ड पॉइंट इज दैट बोथ आर प्लेनर इन नेचर. प्लेनर होंगे sp2 hybridization. एंड फोर्थ इज द this show the addition reaction. This is also show the addition reactions. Now dissimilarities. डिफरेंसेस क्या है, जो मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर इन नेचर के अंदर पोलर होता है, इसका पोलर करेक्टर होता है. सेकेंड, जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी जो एल्केन्स हैं, शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये हम कर चुके हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है. बट जो मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो करते हैं. तो दिस इज द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें और जो एल्केन्स में होते हैं. तो ये हमारे पास पोलर होता है नेचर में, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट एटम्स एंड ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो विड्रॉ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ, सो मेकिंग द बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. तो ये बॉन्ड पोलर होता है नेचर में, बट ये बॉन्ड कैसा होता है हमारे पास, पोलर नहीं होता. सेकेंड इज दैट जो कार्बन कार्बन जो एल्केन्स होते हैं वो शो करती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट जो मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. So this is about similarities and dissimilarities. Now we will do the preparation. First from the alcohols. From alcohols, alcohol की oxidation से हम prepare कर सकते हैं aldehyde.
यानी ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल। फर्स्ट जो मेरे पास एल्कोहल है, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन इट कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड and further oxidation of that takes place aldehyde and into carboxylic acid. Further oxidation takes place of aldehyde into the carboxylic acid. तो this is the limitation. This is the limitation. जो हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, यानी जो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, जहाँ पे हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो सेकंड स्टेप जो कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड फर्दर एसिडिक में, तो इसमें मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दिस इज द लिमिटेशन। सो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है तो हम रिएक्शन मिक्सचर से इसको डिस्टिल्ड कर लेते हैं, डिस्टिलेशन सप्लाई करेंगे, बिकॉज एल्डिहाइड हैव द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इन केस ऑफ ए लोअर एल्डिहाइड हैव द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्कोहल, सो हम क्या करते हैं, इसको इजिली डिस्टिल्ड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास कन्वर्जन होती है एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड है जो एल्डिहाइड हाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इथेनॉल है, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करूंगी मैं यहाँ पे, देन दिस कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रेट। दिस इज द acetaldehyde the loss of water molecule takes place from here, then it convert into the acetaldehyde, it convert into the एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि जब हम इसकी करते हैं ऑक्सीडेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू द एसिटाल्डिहाइड हाइड्रेट, आफ्टर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देन इट कन्वर्ट इनटू द एसिटाल्डिहाइड। Further oxidation of acetaldehyde in it takes place, then it converts into the CH3, COH, OH and OH. Also loss of water molecule takes place from here, then this convert into the acetic acid, CH3 C double bond O, OH, then it convert into the acetic acid. So this is the limitation in case of oxidation from alcohol to acetaldehyde in the presence of acidic potassium dichromate. उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो हमारे पास अल्कोहल है वो पहले एल्डिहाइड में जो कन्वर्ट होती हैं फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो इसको मतलब क्यों होता है कन्वर्ट, तो दिस हमारे पास ये एक्वस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इन केस ऑफ एक्वस कंडीशन जो अल्कोहल है हमारे पास आफ्टर ऑक्सीडेशन कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड हाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सो इसको हम फर्स्ट ओवरकम कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास जो बनता है, जो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है उसको हम रिएक्शन मिक्सचर से डिस्टिल्ड आउट कर सकते हैं, बिकॉज एसिटाल्डिहाइड हैज़ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द अल्कोहल, सो इट कैन बी हम इसको दोबारा से मतलब गेन कर सकते हैं, तो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बट इट इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ द लोअर एल्डिहाइड, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ द लोअर एल्डिहाइड के केस में ही पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोपिनॉल है, कन्वर्ट होगा प्रोपिनल में। सो इट हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट 370 Kelvin, बट दिस हैज़ द 320 Kelvin, सो दिस कैन बी डिस्टिल्ड आउट। बट इन केस ऑफ ए हायर एल्डिहाइड जो हमारे पास है उसके केस में पॉसिबल नहीं है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम स्पेशल कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। फर्स्ट special oxidizing agent used, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है शेरेट, जिसको हम कोलिन रिएजेंट भी बोलते हैं, शेरेट रिएजेंट।
शेरेट रिएजेंट में क्या होता है, ये दिस इज द मिक्सचर ऑफ द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ जो हमारे पास होता है पायरिडिन, उसका मिक्सचर होता है। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन केस ऑफ हमारे पास पायरिडिन का मिक्सचर होता है। तो दिस इज यूज इन केस ऑफ, ये हम यूज करते हैं रिएजेंट इन केस ऑफ नॉन एक्वस कंडीशन में हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम मिथाइलिन क्लोराइड यूज करते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड में यूज कर सकते हैं। सेकेंड कोरे रिएजेंट, इसको हम कोलिन भी बोलते हैं, कोलिन रिएजेंट। सेकेंड कोरे रिएजेंट, जो हमारे पास कोरे रिएजेंट होता है, मिक्सचर होता है सेम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन पायरिडिन एंड HCl का मिक्सचर होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरिडिन एंड HCl का हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो दिस इज द PCC, pyridinium chlorochromate. This is the PCC, pyridinium chlorochromate. This is also used in the non-aqueous condition, methylene dichloride में हम यूज करते हैं। थर्ड जो हमारे पास होता है PDC होता है हमारे पास पायरिडिनियम डाइक्रोमेट। तो ये जो हमारे पास होता है, इसमें क्या होता है, पायरिडिन होता है, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है और HCl का मिक्सचर होता है। तो these are the special oxidizing agents which we used for conversion of the alcohol into the aldehyde के केस में हम यूज करते हैं उनकी कन्वर्जन के लिए। ठीक है, फर्स्ट इज दैट शेरेट रिएजेंट और कोलिन रिएजेंट। दिस इज द मिक्सचर ऑफ द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन पायरिडिन का मिक्सचर होता है, इसमें हम यहाँ पे पायरिडिन यूज करते हैं। तो दिस मिक्सचर जो रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड इन द नॉन एक्वस कंडीशन, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। सेकेंड कोरे रिएजेंट में क्या होता है, जो हमारे पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है, पायरिडिन और HCl का मिक्सचर होता है, इसको भी हम यूज करते हैं। दिस इज द PCC, इसको भी हम यूज करते हैं नॉन एक्वस कंडीशन में। थर्ड होता है PDC, जो हमारे पास मिक्सचर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट इन पायरिडिन इन HCl का। ठीक है, तो दिस इज आल्सो यूज्ड इन द नॉन एक्वस कंडीशन। सो एडवांटेज होती है इन रिएजेंट को यूज करने की फॉर कन्वर्जन ऑफ द अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स, बिकॉज इनकी प्रेजेंस में जो हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड हाइड्रेट नहीं बनाता, जो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेनॉल, this is propanol. This is the propanol. Here we will use क्रोमियम, जो हम PCC की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं कि कैसे हमारे पास ये रिएजेंट अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल PCC के प्रेजेंस में हेयर जो प्रेजेंट है क्रोमियम इन द 6th ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो दिस यहाँ पे टेक्स प्लेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस ऑन द क्रोमियम के ऊपर, देन इट कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 CH2 ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन इज आल्सो अटैच हियर एंड दिस अटैच विद द, ये अटैच होगा किससे, क्रोमियम से, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Cl यहाँ। नाउ प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, जो हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ से, तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 इट कन्वर्ट इनटू CH3 CH2 एंड ऑक्सीजन। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा OH, ये अटैच है क्रोमियम से, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी नीचे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास OH। ड्रॉ द हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर। सो हेयर हमारे पास जो प्रेजेंट है यहाँ पे
ये प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट हियर, अल्फा हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट हियर। यहाँ से Cl नेगेटिव का लॉस हुआ था और प्रोटॉन की ट्रांसफर हुई थी। Cl नेगेटिव विड्रॉ द हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर एंड शिफ्ट दिस बॉन्ड टुवर्ड द कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड टुवर्ड क्रोमियम, ठीक है, दिस बॉन्ड टुवर्ड क्रोमियम, और दिस टेक्स प्लेस हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2, ये हमारे पास जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड O, और हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया किसमें प्लस में Cr डबल बॉन्ड O, Cr डबल बॉन्ड O, OH एज इट इज, OH हमारे पास एज इट इज, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें प्रेजेंट है क्रोमियम, हमारे पास फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। नाउ जो हमारे पास ये 6H5 NH पॉजिटिव Cl है वो एज इट इज रिएक्शन में पड़ा है। नाउ वी विल डू, तो इसमें हमें कहीं भी जो है एल्डिहाइड हाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं दिख रही, क्योंकि दीज आर यूज इन नॉन एक्वस कंडीशन। सो अगर एल्डिहाइड हाइड्रेट्स यहाँ पे नहीं बनेगा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा इन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दोबारा से मैं मैकेनिज्म को रिपीट करती हूँ। इन केस ऑफ पीसीसी कैसे अटैक करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल ने अटैक किया ऑन क्रोमियम एडिशन रिएक्शन, दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन एंड जो क्रोमियम है यहाँ पे 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा ये एज इट इज CH3 CH2 CH2 एज इट इज, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन अटैच टू द क्रोमियम, होल जो बॉन्ड है शिफ्ट एज इट इज। सो ऑक्सीजन के ऊपर आया था नेगेटिव चार्ज यहाँ पे Cl, ऑक्सीजन नेगेटिव और डबल बॉन्ड O एज इट इज। प्रोटॉन का यहाँ से ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, आल्सो एलिमिनेट होगा Cl नेगेटिव। सो ऑक्सीजन और नेगेटिव विड्रॉ द प्रोटॉन फ्रॉम हेयर, दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 एज इट इज, CH2 एज इट इज। सो ऑक्सीजन एंड क्रोमियम ऑल बॉन्ड, ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है डिस्प्लेस द Cl नेगेटिव फ्रॉम हियर, Cr डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, और इसने विड्रॉ की है हाइड्रोजन यहाँ से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ क्लोराइड Cl नेगेटिव एलिमिनेट द हाइड्रोजन, ये कौन सी हाइड्रोजन है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिमूव हो रही है यहाँ पे बाय E2 एलिमिनेशन के थ्रू E2 एलिमिनेशन के थ्रू ये क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो Cl नेगेटिव यहाँ से एलिमिनेट की प्रोटॉन फ्रॉम हेयर, सो दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड मेरे पास CH3 CH2 CH एज इट इज, डबल बॉन्ड O में यानी प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया है प्रोपेनॉल, और यहाँ पे जो हमारे पास एज इट इज पड़ा है क्रोमियम वो 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और पायरिडीनियम जो हमारे पास प्रेजेंट है साल्ट वो एज इट इज है। सो इसमें जो हमारे पास कन्वर्ट कहीं भी एल्डिहाइड नहीं हुआ है हाइड्रेट्स में, सो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन के चांसेस नहीं है। तो इस टाइप से हम जो स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये यूज़ करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल से। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल थी, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, प्राइमरी अल्कोहल थी, उसकी ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में। इफ वी यूज, अगर मैं यूज करती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल देन इट कन्वर्ट इनटू द कीटोन, ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिलता है। नेक्स्ट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पास द प्राइमरी अल्कोहल ऑन द कॉपर, हॉट कॉपर की प्रेजेंस में
573 जो हमारे पास टेम्परेचर है 522 से 573 केल्विन टेम्परेचर, उसकी प्रेजेंस से पास करती हूँ। देन प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड। अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को पास करती हूँ और सेम कंडीशन, देन इट कन्वर्ट इनटू द कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट जाएगी। तो सो डिहाइड्रो सिंपल अगर हम पॉट कॉपर पे पास करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, तो हम सेकेंडरी को करते हैं तो वो कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ थर्ड रिएक्शन फ्रॉम रिडक्शंस ऑफ द एसिड क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड is known as the Rosenmund reduction, is known as the Rosenmund reduction, हम उसको बोलते हैं रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो in this case this is the hydrogenolysis reaction, हाइड्रोजिनोलाइसिस कैटालाइसिस रिएक्शन होती है किसकी, एसिड क्लोराइड की।